एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम PULLB के 2014 वाले क्वेश्चन पेपर पे हैं। ये जो कोर्स है ये रेलिवेंट रहेगा वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर 3 ईयर और 5 ईयर कोर्सेज। सो विद दैट इन माइंड, कीप अ पेन एंड पेपर रेडी, विल गेट इनटू इट। क्वेश्चन नंबर 1 इज, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? कौन सी पहली महिला चीफ जस्टिस थी किसी हाई कोर्ट की? उनका नाम था जस्टिस लीला सेठ। सो जो जस्टिस लीला सेठ थी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, और इसके अलावा हमें और क्या इन्फॉर्मेशन याद रखनी है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि फातिमा बीवी, जस्टिस फातिमा बीवी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये क्वेश्चन अब की बार रिपीट हो सकता है बिकॉज शी हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे इन 2023। सो दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड. She was the first woman judge of the Supreme Court of India, Justice Fatima Bibi. Coming to the next one. Appointment to which of the following posts is not made by the President of India? Prime Minister is appointed by the President of India. Chief Election Commissioner is also appointed by the President of India. CAG is also appointed by the President of India. However, Deputy Chairman Planning Commission, जिसका नाम अब नीति आयोग हो चुका है, that post is not appointed by the President of India. It is appointed by the central government. ठीक है, so D is the right answer. Moving on, these are certain statements regarding Attorney General of India. So Attorney General of India can take part in the proceedings of the Lok Sabha. That's true. He can be a member of the committee of the Lok Sabha. That's also true. He can speak in the Lok Sabha. That's also true. Can he vote in the Lok Sabha? No, he can't vote in the Lok Sabha. So the right answer would be 1, 2 and 3. ये देखते हैं हम थोड़ा. Article 76 जो है of the Constitution of India, it provides that there shall be a Attorney General for India. He is the highest law officer in the country, the chief legal advisor to the government of India. As per Article 88, Attorney General of India has the right to speak and to take part in the proceedings of either house, any joint sitting of the houses and any committee of the parliament. However, he can't vote. Moving on. Which one of the following statements is correct? In India, the same person cannot be appointed as governor for 2 or more states at the same time. ये गलत है. The judges of the High Court of the states in India are appointed by the governor of the state, just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. This is wrong because High Court judges are also appointed by the President. So no procedure has been laid down in the Constitution of India for removal of a governor from his or her post. ये बिल्कुल सही है. कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल या प्रोविजन ऐसा नहीं दिया गया है जिसमें गवर्नर को रिमूव करने का प्रावधान दिया गया हो. आगे चलते हैं. What will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? अगर राज्यसभा किसी मनी बिल को सब्सटेंशियली चेंज करती है तो उसका एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज मनी बिल पे लोकसभा का ही ज़्यादा अधिकार रहता है. सो लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल वेदर इट में एक्सेप्ट और नॉट, दैट्स इट्स ओन इंडिविजुअल विश. सो इट कैन और कैन नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा एंड इट कैन carry forward or move on with the decisions whatever the Lok Sabha has taken. It is not mandatory for Lok Sabha to take the recommendations of the Rajya Sabha in case of a money bill. Moving on. The total number of ministers including the Prime Minister in the Council of Ministers should not exceed. PM और Council of Minister को मिला के कितने % होना चाहिए लोकसभा का? ये है 15%. ये हम पहले भी देख के आए हैं. ठीक है, ये किस में बताया गया था? ये आर्टिकल 75(1)(a) कैपिटल A इसमें बताया गया है. इट वॉज एडेड इन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. डिस्ट्रिक्ट जज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ. डिस्ट्रिक्ट जज किसके कंट्रोल में होते हैं? वो होते हैं हाई कोर्ट के. मूविंग ऑन. द गवर्नमेंट बिल मीन्स अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय. जो गवर्नमेंट बिल होता है, देखिए 2 तरह के बिल होते हैं. एक होता है गवर्नमेंट बिल और दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर बिल, PMB बोलते हैं उसको. तो जो गवर्नमेंट बिल होता है वो एक मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है. वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हो सकता है. सो एनी
So a government bill is a bill which is introduced by a minister in any house of the parliament, whether it's Lok Sabha or Rajya Sabha, उसको हम government bill बोलते हैं. If any other member of the parliament is introducing a bill in the Rajya Sabha or Lok Sabha, it will be known as private member bill. Moving on, official language of the Indian Union is, official language क्या है Indian Union की? Indian Union की official language है हिंदी in देवनागरी script. ये कहाँ बताया गया है? ये आर्टिकल 343 में बताया गया है that the official language of the union shall be Hindi in Devanagari script. Moving on. Who among the following can establish additional codes for better administration of any existing law with respect to a matter concerned in the union list? कौन बना सकता है ऐसा प्रावधान? किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है. द पार्लियामेंट कैन मेक एडिशनल कोड्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ जो कि यूनियन लिस्ट में है. देखते हैं हम आर्टिकल 247 जो है, इट प्रोवाइड्स फॉर इट. इट स्टेट्स दैट नथिंग notwithstanding anything in this chapter, Parliament may by law provide for the establishment of any additional codes for the better administration of laws made by the Parliament or of any existing laws with respect to a matter enumerated in the Union list. Moving on. Treaty making power किसके पास है इंडिया में? Treaty making power है प्रेसिडेंट के पास. However, it must be ratified by the Parliament. So D is the right answer. So international treaties जो हैं, agreements जो हैं, they are negotiated or concluded on behalf of the president. However, they are subject to the approval of the parliament. आगे चलते हैं. Any charge for impeachment of the president may be preferred. Impeachment का प्रोसेस आपको पता है कि रिमूवल का प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि कोई भी चार्ज जो है अगर इम्पीचमेंट का, वो किस में, कौन से हाउस में प्रेफर किया जाना चाहिए. वो किसी भी हाउस में हो सकता है. इट मे बी प्रेफर्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा में शुरुआत हो सकती है, राज्यसभा में भी शुरुआत हो सकती है. तो हम थोड़ा इसके बारे में रीड करते हैं. द प्रेजिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ प्रोसेस नोन एज इम्पीचमेंट. ठीक है. उसके बाद दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस. ठीक है, 1/4 मेंबर्स उसको साइन करके चार्ज को पुट फॉरवर्ड करेंगे और 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा टू द प्रेसिडेंट. आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास, अगर 2/3 मेजॉरिटी से ऑफ द टोटल मेंबरशिप वो रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, तो वो फिर रेजोल्यूशन पास करके ये जो प्रोसीजर है और प्रोसीडिंग्स हैं ये मूव करती हैं टू दिस नेक्स्ट हाउस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द चार्जेस. ठीक है, चाहे वो लोकसभा में अगर शुरू हुआ है तो राज्यसभा में चला जाएगा रेजोल्यूशन पास होने के बाद, अगर राज्यसभा में शुरू हुआ तो लोकसभा में चला जाएगा. सो ईदर केस दिस इज द प्रोसेस. आगे चलते हैं. द फेमस बुक रोजेज इन डिसम्बर इज ऑथर्ड बाय, आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, आगे चलते हैं. विच हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स. कौन सा हाई कोर्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स को केटर करता है? उसका आंसर है गुवाहाटी हाई कोर्ट. कौन कौन सी स्टेट्स हैं देखते हैं. असम को केटर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम. मूविंग ऑन. हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू बिकम अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया. जो सरोजिनी नायडू थी वो फर्स्ट फीमेल गवर्नर या वुमेन गवर्नर थी किसी भी स्टेट के इन इंडिया में. So she was the first woman to become the governor of an Indian state. She governed Uttar Pradesh from 1947 to 49. Moving on. Which of the following has held the office of Chief Minister, Speaker of Lok Sabha and President of India? इनमें से किसने जो है चीफ मिनिस्टर की भी उपाधि रखी है, पोजीशन रखी है, स्पीकर की भी रखी है और प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया के. उनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी. So he was the first CM of Andhra Pradesh, then he became Speaker of Lok Sabha and finally he became Indian President. Moving on. Fundamental duties were included in the Constitution on the recommendation of which of the following committees? किस कमेटी की recommendations पे fundamental duties बनी थी? उसका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है. स्वर्ण सिंह कमेटी जो है इन 1976 में उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी टू ऐड फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फिर 42nd अमेंडमेंट से ऐड कर दिए गए थे. सो देन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आज की डेट में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं अंडर आर्टिकल 51A. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Who among the following historical personalities became the first Indian to be a member of the British Parliament? Dadabhai Naoroji.
So Dadabhai Naoroji was elected for the Liberal Party at the 1892 general election. He was the first British Indian MP. आगे चलते हैं. Which Indian state has the highest representation of members in Lok Sabha? कौन सी स्टेट के सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है मेंबर्स की लोकसभा में? उसका आंसर हमें पता है, उत्तर प्रदेश है. कितनी सीट्स हैं? 80 सीट्स हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश की. मूविंग ऑन. Who became the second person after S. Radhakrishnan to get a second term as vice president? राधाकृष्णन जी 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के. उनके बाद और कौन से वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनको 2 टर्म्स मिले हैं? उनका नाम है हामिद अंसारी. ये रहे हैं 2007 से लेकर 2012 तक और फिर 12 से लेकर 2017 तक. मूविंग ऑन. डिसीजंस रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर टेकन बाय. अगर किसी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन होता है लोकसभा में तो स्पीकर इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी. मूविंग ऑन. व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू न्यू दिल्ली? पहले इंडिया की कैपिटल कैलकाटा होती थी अंडर ब्रिटिश रूल. देन इट वाज शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली इन द ईयर 1911. 1911 में दिल्ली दरबार लगा था जिसमें किंग जॉर्ज जी 5th आए थे और उन्होंने प्रोक्लेम किया कि हम कैपिटल को मूव कर रहे हैं कैलकाटा टू दिल्ली. मूविंग ऑन. राइट टू इन्फॉर्मेशन इन इंडिया. राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि आज की डेट में एक फंडामेंटल राइट है क्योंकि आर्टिकल 19(1) में वो ऐड किया गया है. तो फंडामेंटल राइट तो है ही, इसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी पास हो चुका है, तो ये लीगल राइट भी है. तो बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर. So RTA has been given the status of fundamental right under Article 19(1) of the Constitution because under Article 19(1) पता है हमें क्या होता है 19(1) में? Every citizen has freedom of speech and expression and have the right to know how the government works, what role does it play, what are its functions. तो RTA जो है वो fundamental right भी है और statutory या legal right भी है. आगे चलते हैं. जस्टिस मिस्टर राजेंद्र मल लोधा इज डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. आज के लिए रेलिवेंट नहीं है. प्रेजेंट सीजीआई देखते हैं कौन से हैं. जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं हमारे प्रेजेंट सीजीआई, ही इज़ द 50th सीजीआई ऑफ इंडिया. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है इस साल. आगे चलते हैं. 120th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद. ये उस साल क्वेश्चन आया था बिकॉज इस पे 120th अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था बट वो पास नहीं हुआ. तो उस साल का एक करंट अफेयर क्वेश्चन था जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात कर रहा था, NJAC की. ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में. सो 120th अमेंडमेंट बिल था जो इट वाज ट्राइंग टू अमेंड प्रोविजंस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी. इट एस्टैब्लिशेस अ जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी. लेकिन ये बिल जो है नहीं पास हुआ, तो इसलिए आज की डेट में एक्ट नहीं है. आगे मूव करते हैं. The Parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaties. जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि अगर वो किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है सो इट डज नॉट नीड द कंसेंट ऑफ द स्टेट जहाँ पे वो लागू करेगी. तो D इज़ द राइट आंसर. विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट इट कैन इम्प्लीमेंट एनी इंटरनेशनल ट्रीटी इन इंडिया. ये आर्टिकल 253 में बताया गया है दैट द पार्लियामेंट हैज़ द सोल राइट. सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही राइट है ये to make laws for the whole or any part of the territory of India with the motive of executing an international treaty. आगे चलते हैं. What is psephology? ये होता है statistical study of elections of voting etc. Moving on. Who decides the disputes regarding election of the president? President का election जो होता है वो original jurisdiction में fall करता है of the Supreme Court of India. 2 चीज़ें आपको याद रखनी है. अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्प्यूट है या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्प्यूट है, इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाएगा. अगर डिस्प्यूट है प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस का या स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्शंस का या MP इलेक्शंस का, ML इलेक्शंस का, तो उस केस में हाई कोर्ट के पास केस जाएगा. ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट. आगे चलते हैं. When the vice president acts as president, he gets the emoluments of. जिस समय पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं एज द प्रेसिडेंट, उस समय उनको प्रेसिडेंट की ही सैलरी, एमोल्यूमेंट सब कुछ मिलता है. तो A इज़ द राइट आंसर. द प्लैनेट कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार एंड एन इवनिंग स्टार इज. जो वीनस है, वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोला जाता है. वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज
and sometimes it appears in the western sky just after sunset. So therefore it is often called as morning or evening star. आगे चलते हैं. The largest part of the cropped area in India is under. इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस मिलती है. जो क्रॉप्ड एरिया है, सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड एरिया है, वो राइस का है. ठीक है. सो डोमिनेंट क्रॉप इन इंडिया इज़ राइस एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और राइस कौन सी क्रॉप है? राइस खारिफ क्रॉप है. जो वीट है वो राबी क्रॉप है. आगे चलते हैं. द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो उस समय था वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था. लेकिन आज की डेट में हमें याद नहीं रखना है. आज की डेट में हमें नीति आयोग याद रखना है, जिसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को. द 12th 5-year प्लान इज़ फॉर 12th 5-year प्लान जो लास्ट था वो 2012 से लेके 17 तक था. अब ये इसके बाद 5-year प्लान्स नहीं हैं. अब नीति आयोग वर्क कर रहा है. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. ये कितने बार हमने पहले कर लिया है, तो आई होप मुझे आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में. इंडियाज़ फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड इन. इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 में. नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया पीकॉक है. इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं. इंडियन पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्रिस्टेटस. ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखें. द फर्स्ट मंथ ऑफ साका एरा नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज़. जो पहला महीना होता है इंडियन कैलेंडर का, साका एरा का, उसका नाम है चैत्र. पहला महीना है जो. वॉट कैन बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. ये भी हम पहले करके आए हैं. 6 months का गैप हो सकता है बिटवीन 2 सेशंस. 6 months से ज़्यादा नहीं हो सकता है. पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर. पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर कौन से आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. द रेजिड्यूरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिन ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू. देखिए 7 शेड्यूल के अंदर जो 7 शेड्यूल है वो 3 लिस्ट बताता है. एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट. जो यूनियन लिस्ट में है वहाँ उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा. जो स्टेट लिस्ट में है उसके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी. जो कंकरेंट लिस्ट है उनके ऊपर बोथ बना सकते हैं. हाउएवर इसके बाद भी अगर कोई ऐसा मैटर, सब्जेक्ट मैटर बचता है, उसको हम बोलते हैं रेजिड्यूरी मैटर. और उसके ऊपर लॉ बनाने की जो पावर है वो रेजिड्यूरी पावर सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है. ठीक है. तो आपको ये याद रखना है, द रेजिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन हैज़ बीन गिवन टू द पार्लियामेंट. और ये आर्टिकल कौन से में बताया गया है? आर्टिकल 248 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ के बारे में बात करता है. इट सेज द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट इनमरेटेड इन द कंकरेंट और स्टेट लिस्ट. अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई ऐसा टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, तो इसके अलावा अगर किसी भी लिस्ट में फॉल करता है, यूनियन में करता है या फिर तीनों में नहीं करता है, तो उसके ऊपर पार्लियामेंट का ही राइट है या पावर है टू मेक द लॉ. ये आपको याद रखना है. आगे चलते हैं. द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. कॉपर और टिन मिला के बनता है ब्रॉन्ज. वही अगर हम कॉपर और जिंक मिलाएं तो बनेगा ब्रास. ठीक है. ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें. द ब्लैक बोर्ड लुक्स ब्लैक बिकॉज. ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर. ठीक है. इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर. इट अब्जॉर्ब्स ऑल लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, सो इट अपीयर्स एज ब्लैक, विच इज एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ कलर. मूविंग ऑन. मायोपिया इज कनेक्टेड विद. मायोपिया एक कंडीशन है आई साइट की, तो इट इज कनेक्टेड विद आईज. थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं. एक मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है. जो मायोपिया होता है उसको हम शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, कि हमें जो है जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो सही से दिख रही हैं लेकिन डिस्टेंट चीज़ें नहीं दिख रही हैं. नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट नॉट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. हाइपरमेट्रोपिया में बिल्कुल इसका उल्टा होता है. इसमें लॉन्ग साइटेडनेस होती है कि दूर की चीज़ें दिख रही हैं, फार अवे ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट नॉट द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. आगे चलते हैं. डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ. डायबिटीज़ किसके लैक से होता है? इंसुलिन. इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन इंजेक्शन लगते हैं. आगे चलते हैं. कॉलरा इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़. थोड़ा कॉलरा के बारे में देखते हैं. कॉलरा इज एन acute diarrheal illness caused by infection of the intestine with Vibrio cholerae bacteria.
ये बैक्टीरिया का नाम है. पीपल कैन गेट सिक व्हेन दे swallow फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद कॉलरा बैक्टीरिया. आगे चलते हैं. बटर सेपरेट्स फ्रॉम द मिल्क ड्यूरिंग द चर्निंग ऑफ मिल्क बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट हो सकता है. सो व्हेन मिल्क इज churned, the butter cream is separated from it due to centrifugal force because this force acts in an outward direction. हमें दो टर्म्स याद रखने हैं. सेंट्रीफ्यूगल जो है आउटवर्ड, जो सेंट्रीफ्यूगल है वो बाहर को फोर्स लगाता है और जो सेंट्रीपेटल है वो अंदर को. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. So due to this outward force, the heavier particles in the milk experience more force than the lighter particle. So the butter or the cream part being heavier separates from the milk and gets churned out. ऐसे बनता है बटर. आगे चलते हैं. What is used by submarine personnel to see surface objects? कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो surface objects देखने के लिए? उसका आंसर है पेरिस्कोप. मूविंग ऑन. ब्रेंट इंडेक्स किसके साथ एसोसिएटेड है? ब्रेंट इंडेक्स जो है वो यूज़ होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस चेक करने के लिए. मूविंग ऑन. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ एनुअली पब्लिश्ड बाय. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, इसके द्वारा हर साल पब्लिश की जाती है. ठीक है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर दिस लेक्चर. We'll come up with other such videos, wonderful videos for you guys. So please drop your comments and queries. We'll get back to you very soon. Thank you so much.